جب ہم مل کر خداوند کی عبادت کرتے ہیں، اتوار کا جو دن ہوتا ہے یہ خاص عبادت کا دن ہے۔ خداوند یسوع مسیح اتوار والے دن تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوئے، اور ہم مسیحی لوگ اس ایمان پر عبادت کرتے ہیں کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کی عبادت کریں گے اور قیامت میں خداوند یسوع مسیح ہمیں زندہ کریں گے۔ اس ایمان پر ہم اتوار کو عبادت کرتے ہیں، اور 10 حکموں میں بھی حکم ہے کہ 6 دن تک آپ کام کریں اور 7واں دن آپ کے لیے خدا کے سبت کا دن ہے، آرام کے دن ہے۔ جب ہم اتوار والے دن کام کاروبار کو چھوڑ کر اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں تو خداوند ہمیں فردوس میں آرام دیں گے۔ خداوند کے کلام کے وسیلے سے زندگی ہے، زندگی بخش کلام پڑھیں گے۔ لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 13واں باب۔ خداوند کے کلام کی عزت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ نئے عہد نامہ میں سے پڑھیں گے۔ مقدس خدا کے بندے مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 13واں باب، پہلی آیت سے 5 آیت تک۔ چاچو لحاظ ہمارے لیے پڑھیں گے۔ اس وقت بعض لوگ حاضر تھے جنہوں نے اس گلیلیوں کی خبر دی جن کا خون پیلاطس نے ان کے ذبیحوں کے ساتھ ملایا تھا۔ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ ان گلیلیوں نے جو ایسا دکھ پایا، کیا وہ اس لیے تمہاری دانشت میں اور سب گلیلیوں سے زیادہ گناہگار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ یا کیا وہ 18 آدمی جن پر شہلاؤ کا برس گرا اور دب کر مر گئے، تمہاری نسبت میں یروشلم کے اور سب رہنے والوں سے زیادہ قصوردار تھے؟ میں اور تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوں گے۔ آمین آمین۔ جی بیٹھ جاؤ، خداوند آپ کو بتا۔ خداوند کے مقدس کلام میں ہم نے پڑھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو خبر دی گئی جنہوں نے اسے ان گلیلیوں کی خبر دی جن کا خون پیلاطس نے ان کے ذبیحوں کے ساتھ ملایا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کو یہ خبر دینے لگے کہ خداوند یسوع مسیح، آپ کو پتہ ہے کہ گلیل میں کچھ لوگ قربانیاں گزارنے لگے تھے، تو جب وہ اپنی قربانیوں کو گزارنے لگے تو ایسا ہوا کہ پیلاطس نے ان کے ذبیحوں کے ساتھ ان کو بھی قتل کر دیا۔ تو خداوند یسوع مسیح سوال کرتے ہیں، اس نے جواب میں ان سے کہا کہ ان گلیلیوں نے جو ایسا دکھ پایا، کیا وہ اس لیے تمہاری دانشت میں اور سب گلیلیوں سے زیادہ گناہگار تھے؟ خداوند یسوع مسیح نے لوگوں سے کویسچن کیا کہ گلیل میں اور بھی بہت سارے لوگ رہتے ہیں، تو کیا دوسرے لوگوں سے ان لوگوں نے زیادہ گناہ کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ جتنے دوسرے لوگ گناہ گار تھے اتنے ہی یہ لوگ گناہ گار ہیں۔ پر خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ گناہ کی وجہ سے ان پر آفت آ گئی اور باقی لوگوں پر نہیں آئی۔ ایسا ہوتا ہے کہ گناہ
होते रहते हैं, लोग गुनाह करते हैं, तो कोई पता नहीं किस पर गुनाह की वजह से आफत आए और कुछ बच भी जाते हैं। खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि और सब गलीलियों से ज्यादा गुनाहगार थे, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं। खुदावन यीशु फरमाते हैं कि दूसरे गलीलियों से ये ज्यादा गुनाहगार ना थे। जैसे दूसरे लोग गुनाहगार हैं वैसे ये भी गुनाहगार थे, पर इन पर आफत आ गई, इनको गुनाह की वजह से कत्ल किया गया। आखिर में खुदावन यीशु इसका रिजल्ट क्या बताते हैं? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होंगे। खुदावन यीशु मसीह फरमाते हैं तो कि वो तो गुनाह की वजह से मर चुके हैं, आप जो जिंदा लोग हो, खुदावन फरमाते हैं आप जो जिंदा लोग हो, अगर तौबा ना करोगे तो जैसे वो मर गए हैं आप भी मारे जाओगे, आप भी इसी तरह हलाक होगे। तो खुदावन का कलाम हमें ये सिखाता है कि तौबा जो होती है ये मौत से बचाती है, तौबा जो होती है ये हलाकत से बचाती है। अगर हम जिंदगी को हासिल करना चाहते हैं तो खुदावन यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह से हलाक होगे। तो हलाकत से बचने के लिए, मौत से बचने के लिए तौबा करना लाजमी है। तौबा का मतलब है अपने दिल को तब्दील करना, अपनी जिंदगी को तब्दील करना। तब्दीली का मतलब ये है कि अगर हम हर रोज अपने खुदा का कलाम नहीं पढ़ते, दुआ नहीं करते, तो हमें चाहिए कि अपने दिल को बदलें, अपने जहन को बदलें, हर रोज कलाम पढ़ें, हर रोज दुआ किया करें। सुबह भी आप उठें, कलाम पढ़ें, दुआ करें, शाम को भी उठें, कलाम पढ़ें, दुआ करें, तो ये आप में तब्दीली आएगी। अगर आप सुबह शाम कलाम नहीं पढ़ते, दुआ नहीं करते, खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते, तो फिर कलाम में हमने पढ़ा है कि हमारी जिंदगी में तब्दीली नहीं। ये तब्दीली से लफ्ज़ तौबा है, इसका मतलब होता है बदल जाना, कि पहले आप इबादत नहीं करते और अब आप इबादत करें, पहले दुआ नहीं करते अब दुआ करें, पहले खुदा के हुजूर नहीं आते, रोज़े नहीं रखते, अब रोज़े रखना शुरू करें, खुदा की इबादत करें और उसके कलाम पर अमल करें। जब हम सुबह उठते हैं, कलाम को पढ़ते हैं, तो खुदा हमें कोई ना कोई मैसेज देता है, और जब हमें मैसेज दिया जाता है तो वो कोई काम करने के लिए मैसेज दिया जाता है। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, खुदा हमें कोई पैगाम देता है। हो सकता है आप पढ़े तो खुदा आपको मोहब्बत का पैगाम दे। खुदा फरमाए क्या मेरे बेटे बेटियों, लड़ाई नहीं करनी बल्कि प्यार, मोहब्बत, सुलह सलामती के साथ दिन गुजारना है। तो जब आप ये कलाम पढ़ेंगे आपके दिल में रहेगा कि हमने आज लड़ाई नहीं करनी बल्कि सुलह से रहना है, मोहब्बत के साथ है। तो जब इंसान के दिल में, उसके ज़हन में कोई कलाम आता है, पैगाम आता है, तो इंसान जो है ये उस पैगाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है। अगर हम कलाम को नहीं पढ़ेंगे, दुआ नहीं करेंगे, तो शैतान भी हमें मैसेज देगा। शैतान हमें मैसेज देगा, हमारे दिल को सख्त कर देगा। शैतान भी हमें मैसेज देगा, लड़ाई का मैसेज दे देगा। शैतान जो है वो हमें सुलह को तोड़ने का मैसेज देगा, या बुराई करने का, या लालच करने का, चोरी करने का। हर रोज शैतान भी इंसानों को मैसेज देता है, फिर वो गलत काम करते हैं। अगर ख्यालों में, सोचों में शैतान कोई मैसेज ना दे, दुनियादारी के शैतान के पास बड़े तरीके होते हैं। जब हम कोई गाना सुनते हैं उसमें भी कोई शैतान का मैसेज होता है, बुरा काम करने का मैसेज होता है। जब टिकटॉक को बड़े शौक से देखते हैं, टिकटॉक में भी कोई बुरा मैसेज होता है, तो जो बुरा मैसेज होता है वो लोगों में बुराई को फैलाता है, गुनाह को फैलाता है। एक टिकटॉक की मैं मिसाल आपको देता हूँ कि टिकटॉक के जरिए कैसे शैतान दूसरे लोगों में बुरा मैसेज फैलाता है, तो फिर लोग बुरी बातों को सुन के, बुरे मैसेज को सुन के बुरे काम करने लगते हैं। एक लड़की ने टिकटॉक बनाया, एक बच्चा उसने उठाया, तो उसे
कह रही थी चुप कर जा, बदल दूंगी, चुप कर जा, बदल दूंगी। तो साथ एक लड़का था, उसने कहा भाभी क्या कहता है बेबी, इसका पैम्पर बदल दोगी? वो कहती है कि नहीं, कह रहा है कि मेरे पापा को बदल दो। मैं कह रही हूँ कि ठीक है, तेरा पापा बदल दूंगी। ये टिकटॉक के जरिए मैसेज आवाम को दिया गया है। खुदा के कलाम में है कि मसीहियों की एक ही शादी होती है। कलाम में क्या है? मसीहियों की एक ही शादी है, पर इस टिकटॉक के जरिए मैसेज दिया गया है कि और भी शादी हो सकती है। हमारे कलाम के मुताबिक जो बीवी है अपना शौहर नहीं बदल सकती, दूसरा नहीं कर सकती। अगर वो ऐसी दूसरी शादी करे तो गुनाह है। कलाम में लिखा है सारी उम्र जिना करती है। तो इस तरह से गानों के जरिए, टिकटॉक के जरिए मसीहियों में फहाशी को फैलाया जाता है, हरामकारी को या तलाक को। पर इन कामों से, इन चीज़ों से लोग तलाक दे देते हैं, इन चीज़ों से दूसरी शादियां करते हैं। ये गाने जो हैं ये बुरा मैसेज देते हैं, ये टिकटॉक है बुरा मैसेज देते हैं। इसलिए खुदावंद कहते हैं कि मेरे बेटे बेटियों बदल जाओ। ये शैतान जो बुरे आपको मैसेज देता है गानों के जरिए, नेट के जरिए, फिल्मों के जरिए, इस तरह और बुरी दुनियादारी की चीज़ों के जरिए, तो आप बदल जाएं, इनको छोड़ दें और खुदा की इबादत करें। दुआ में खुदा आपको अच्छी बात सिखाएगा। जब आप अच्छी बात सीखेंगे तो अच्छे काम करेंगे। इंसानी जहन जो होता है ये एक कंप्यूटर की मानिंद है, ये एक मोबाइल की मानिंद है। इसमें अगर गीत डाउनलोड करेंगे तो गीत ही चलेंगे, अगर इसमें गाने भर देंगे तो गाने ही चलेंगे। इसी तरह हमारा जहन है, इसी तरह हमारा जहन है, दिल है। जब अपने दिल में, जहन में अच्छी बातों को, खुदा के कलाम की बातों को बोएंगे तो सारा दिन अच्छा काम करेंगे। अगर बुरी बातों को दिल में लेकर आएंगे तो फिर सारा दिन बुरा काम करेंगे। इसलिए खुदावन कहते हैं कि मेरे बेटे बेटियों बदल जाओ। अगर तौबा नहीं करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। तौबा जो है, दिल की तब्दीली जो है, ये हमें मौत से बचाती है, ये हमें दोज़ख से बचाती है, ये हमें गुनाहों से बचाती है। तो हमने अपने दिल को बदल लेना है, चेंज करना है। हर रोज खुदा का कलाम सीखना है कुछ अच्छा करने के लिए। अगर हम सारी बाइबल को पढ़ लेते हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं करते, उस पर अमल नहीं करते, तो इसका हमें कोई फायदा नहीं होता। यीशु मसीह कहते हैं कि अक्लमंद इंसान वो है जो मेरी बातों को सुनता है और उन पर अमल करता है। वो उस शख्स की मानिंद है कि जिसने अपने घर को चट्टान पर बना लिया। जो खुदावन की बातों को सुनते हैं, उन पर अमल करते हैं, वो अक्लमंद लोग हैं। उन्होंने अपना घर चट्टान पर बना लिया है। घर क्या है? हमारी जिंदगी है। वो इंसान तबाह नहीं होंगे। जो खुदावन यीशु के कलाम को अपने दिल में लेते हैं, अपनी रूह में लेते हैं और फिर उस पर अमल करते हैं, वो इंतहाई ज़हीन लोग हैं। वो कभी तबाह नहीं होंगे, फना नहीं होंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये दुनिया फानी है, फना होने वाली है। हर एक चीज़ जो है ये तबाही, बर्बादी का शिकार होने वाली है। तो कलाम हमें ये सिखाता है। यीशु कहते हैं कि अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक मौत को कभी ना देखेगा। आप खुदा के लोग बड़े अच्छे हैं, आप बड़े ज़हीन हैं। खुदा ने हर इंसान को यूनिक बनाया हुआ है। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत यूनिक हैं। आपने टैलेंट बड़ा है, आप में अकल, दनाई, समझ बड़ी है। समझदार लोग जो हैं वो अपने दिल को बदल लेते हैं, अपनी ज़िंदगी को बदल लेते हैं। वो दुआ करना शुरू करते हैं, रोज़े रखना शुरू करते हैं, खुदा के कलाम पर अमल करना शुरू करते हैं। अगर हम खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लें, कलाम सुबह पढ़ लें, अगर खुदा कहता है सुलह करो और सुलह ना रखे तो हमें फ़ायदा कोई नहीं। खुदावन हमें मैसेज इसलिए देते हैं कि उस कलाम के मुताबिक हमने ज़िंदगी गुजारनी है। सुबह जब आप उठकर कलाम पढ़ते हैं तो ऐसा करें, फिर पढ़ने के बाद सोचें कि मैंने क्या सीखा है। मोहब्बत के बारे में सीखा है, माफ़ी देने के बारे में सीखा है। अगर खुदावंद आपको कहता है कि मेरे बेटे बेटी अपने दिल को हलीम कर, दूसरों को माफ़ कर, तो पढ़ने के बाद ये सीखना है, गौर करना है कि हमने आज कलाम में से क्या सीखा है। जब आप गौर करेंगे तो आपको खुदा समझाएगा कि फलां आपने कलाम की बात को सीखा है। तो जब आप कलाम को सीख लेते हैं, माफ़ी को आपने सीखा है,
تو پھر آپ نے معافی کے مطابق زندگی گزارنی، دوسروں کو معاف کرنا ہے۔ کلام میں یہ لکھا ہے کہ خدا نے مسیحی لوگوں کو، اپنے لوگوں کو زمین آسمان کی پیدائش سے پہلے خلق کیا ہے۔ تب آسمان بھی نہ تھے، تب زمین بھی نہیں تھی، جب خدا نے آپ کو پیدا کر دیا تھا، خلق کر دیا تھا، تو لکھا ہے کہ خداوند نے اپنے لوگوں کو نیکی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں شیطان اور شیطان کا گروپ یہ لڑائی کرتے ہیں۔ مسیحوں کو پیدا کیا ہے صلح کے لیے، محبت کے لیے۔ دنیا میں شیطان کے لوگ چوری کرتے ہیں، پر مسیحوں کو خدا نے پیدا کیا ہے محنت کرنے کے لیے، کہ وہ محنت سے پیسہ کمائیں اور دوسرے کی مدد کریں۔ خداوند سکھاتا ہے کچھ نیک کام کرنے کو، تو ہم نے تبدیلی یہ ہے کہ پہلے اگر ہم نیک کام نہیں کرتے، آج سے نیک کام کرنے ہیں۔ اگر پہلے محنت کر کے پیسہ نہیں کماتے تو آپ محنت کر کے پیسے کمائیں اور اس محنت کی کمائی سے اپنے خدا کے لیے 10واں حصہ نکالے، تاکہ اس کلام سے، اس پیسے سے کلام سنایا جائے، منادی کی جائے اور روحوں کو دوزخ سے بچایا۔ سب سے بڑی نیکی ہے کسی جان کو دوزخ سے بچانا، موت سے بچانا۔ تو یہ نیکی آپ کر سکتے ہیں دعا کر کے، دعا کر کے آپ نیکی کر سکتے ہیں۔ جب آپ اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنی مسیحی قوم کے لیے دعا کریں گے، آپ کی دعاؤں سے لوگ جو ہیں یہ بدلنا شروع ہو جائیں گے، لوگ دوزخ سے بچنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ آپ کا نیک کام ہے۔ دعا کر کے آپ اپنی جان کو، دوسری جانوں کو بچا سکتے ہیں۔ پھر جب آپ 10واں حصہ دیتے ہیں، تو جب 10ویں حصے سے خدا کے کلام کی منادی کی جاتی ہے، تو کلام کے وسیلے سے کئی روحیں جو ہیں یہ دوزخ سے بچتی ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی نیکی ہے، کسی جان کو دوزخ سے بچانا خداوند یسوع کے وسیلے۔ تو خداوند یسوع بھی دنیا میں یہی مقصد لے کر آئے کہ میں نے گناہ گار انسان کو دوزخ سے بچانا ہے، ہمیشہ کی زندگی دینی ہے، فردوس دینی ہے۔ خداوند یسوع یہ نیک مقصد لے کر آئے، اور اس نیک مقصد کو پورا کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان بھی دی۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اب مسیحوں پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ مسیحی لوگ خداوند کی عبادت کے وسیلے، کلام کے وسیلے، دعا کے وسیلے، روزے رکھ کے خدا کو ہدیے نذرانے 10واں حصہ دے کر لوگوں کو دوزخ سے بچائیں، خداوند یسوع کے پاس لے کر آئیں، اور خداوند یسوع کے وسیلے لوگ نجات پائیں۔ لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے مسیحی لوگوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے اور دنیا میں نیک کاموں کے لیے مقرر کیا ہے۔ ہم مسیحوں کو خداوند یسوع مسیح نے نیک کاموں کے لیے مقرر کیا ہے۔ یہی توبہ ہے، یہی دل کی تبدیلی ہے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے بدل جانا، یا اس کا مطلب پچھتانا بھی ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں پر پچھتائیں کہ ہم نے اتنی زندگی کیوں بیکار میں، فضول کاموں میں گزاری ہے، ہم نے اپنی زندگی کا وقت کیوں ضائع کیا ہے۔ ہم اپنی جو زندگی کو ہم نے فضول زندگی گزاری ہے، اس میں ہم اچھے کام کر سکتے تھے، نیک کام کر سکتے تھے۔ پہلے ہم نے کیوں نہیں نیک کام کیے، کیوں نہیں اچھے کام کیے، کیوں نہیں اپنے خداوند کی عبادت کی، کیوں نہیں دوسرے لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لائے۔ تو اس طرح سے جب ہم اپنے دل کو بدلتے ہیں، زندگی کو بدلتے ہیں، خداوند کی عبادت کرتے ہیں، اور پکا آپ نے ارادہ کر لینا ہے کہ آج سے ہم نے دل کو بدلنا ہے، زندگی کو بدلنا ہے اور اچھے کام کرنے ہیں، نیکیاں کرنی ہیں، کیونکہ خداوند یسوع نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب اپنے دل کو، زندگی کو بدلیں گے، آپ کو خداوند سے نجات ملے گی، آپ کے گھرانے کو نجات ملے گی، آپ کی دعاؤں سے اور بہت سارے لوگوں کو نجات ملے گی۔ تو 3 ورس میں پڑھتے ہیں، میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ یا کیا وہ 18 آدمی جن پر شیلاؤ کا برج گرا اور دب کر مر گئے تمہاری دانست میں یروشلم کے اور سب رہنے والوں سے زیادہ قصوروار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔
खुदावन यीशु मसीह ने उनसे सवाल किया कि जो लोग शलाओ के बुर्ज के नीचे आकर दबकर मर गए, तो क्या वो यरूशलेम के रहने वाले दूसरे लोगों से ज्यादा गुनाहगार थे? खुदावन ने कहा कि ज्यादा गुनाहगार नहीं थे, जितने दूसरे लोग गुनाहगार हैं उतने वो भी थे। पर क्या हुआ, अचानक उन पर बुर्ज गिरा और वो दबकर मर गए। गुनाहगारों पर अचानक हलाकत आती है। कलाम हमें ये सिखाता है कि अगर अपने दिल को ना बदले, अपने गुनाहों को पछताकर छोड़े ना, तो फिर अचानक गुनाह की वजह से अचानक मौत आती है, अचानक हादसे होते हैं। तो ये भी लोग लिखा है कि दूसरे लोगों की तरह ही गुनाहगार थे, पर अचानक शराब का बुर्ज पर गिरा, दबकर ये मर गए। तो यीशु ने कहा कि तुम जो जिंदा हो, अगर आप तौबा नहीं करोगे तो तुम भी इसी तरह हलाक होगे। तौबा हमें हलाकत से बचाती है, मौत से बचाती है। ये तो हमने कलाम में पढ़ा। अब दुनियादारी में हादसे होते हैं, आप उन पर गौर करें। जब पिछला जो साल है, सर्दियों का मौसम आया, 12वें महीने में बहुत सारी बर्फ पड़ी। कुछ जो घर हैं वो बर्फ के नीचे दब गए और कुछ लोग उनके नीचे आके मर गए। इस तरह से सर्दी की वजह से बहुत सारे हादसे हुए। पिछले साल में बड़ा नुकसान हुआ, कई लोग मौसम की सख्ती की वजह से मर गए। उसके बाद आप कोरोना वायरस को देखें, दुनिया में लाखों लोग इस वबा की वजह से मर गए। ये वबाएं क्यों आती हैं, ये हादसे क्यों होते हैं? वबाएं इसलिए आती हैं, हादसे इसलिए आते हैं क्योंकि हम अपने दिल को बदल कर नेकी नहीं करते, अपने खुदा से मोहब्बत नहीं करते, खुदा की इबादत नहीं करते, खुदा को टाइम नहीं देते। इस वजह से तो कलाम में लिखा है, जब तौबा नहीं करते तो वबाएं आती हैं, मुश्किलें आती हैं, मुसीबतें आती हैं। ये सारे गुनाह की वजह से होती हैं। कराची में बड़ा सैलाब आया था, तो ये रमा दिनों में ही कराची में बड़ा सैलाब आया। बड़े सारे लोग जो हैं वो सैलाब में उनका बड़ा गाड़ियों का नुकसान हुआ, इमारतों का नुकसान हुआ, कुछ लोग डूबकर मर गए। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो कलाम में लिखा है दुनिया में उसी तरह होता है। जब लोग गुनाहों से तौबा नहीं करते, अपनी दिल को नहीं बदलते, जिंदगी को नहीं बदलते, अच्छाई का नेकी का काम नहीं करते, तो इस तरह कलाम में लिखा है, यीशु कहते हैं कि सब इसी तरह हलाक हो गए। ये सारे लोग कलाम के मुताबिक इकट्ठे नहीं मरते, कुछ तो बुर्ज के नीचे दब के आगे मर गए। खुदावन ने क्या कहा कि अब तुम जो जिंदा हो तो तुम भी इसी तरह हलाक हो जाओगे। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि इकट्ठे सारे ही मर जाएं। गुनाह की वजह से कुछ पर हादसा होता है, कुछ बच जाते हैं। जो बच जाते हैं अगर वो तौबा ना करें तो फिर उन पर भी ये हलाकत आती है। ये खुदावन के कलाम के मुताबिक है। बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक हो। और भी बड़े बड़े डिज़ास्टर, बड़ी बड़ी मुश्किलें, मुसीबतें आती ही रहती हैं। कभी समंदर में तूफान आता है, सुनामी आता है, तो बहुत सारे लोग उसकी वजह से मर जाते हैं। कुछ लोग ज़लज़ले आते हैं, उसकी वजह से मर जाते हैं, वबाओं से मरते हैं। तो कलाम में ये लिखा है कि अगर इंसान अपने दिल को बदल दे और खुदा की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दें, तो तौबा करें, अच्छाई करें, खुदा को खुश करें, नेकियां करें, उसके कलाम पर अमल करें, तौबा करें और यीशु के नाम पर बपतिस्मा लें, उसकी सीधी राहों पर चलना शुरू हो जाएं, तो ये आफतें, मुसीबतें जो है ये ख़त्म हो जाएंगी और दुनिया में सलामती और सुलह की ज़िंदगी की बरकत जारी होगी। खुदावन इस कलाम पर अमल करने की तौफीक दे और इसके वसीले से बरकत अता फरमाए।